Welcome to another MCQ video. ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଟପିକ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆପଣ କେତେଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି 20ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି MCQ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେ 20ରୁ ଆପଣ କେତୋଟି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର MCQ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟି କନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲେର୍ଜି? ଫରାସୀ ସମାଜର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ୍ଲେର୍ଜି ମାନେ ରହୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଫରାସୀ ସମାଜ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ୍ଲେର୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯେପରି ତୁମର ବିଶପ୍ସ, ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଏବଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହୁ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରିକି ରହୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପିଜେଣ୍ଟ, କ୍ଲେର୍ଜି, ନୋବିଲିଟି, ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ନୋବିଲିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ତୁମର ଏରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେପରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ବା କର ଛାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଫିଡାଲ୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମଡ୍ ଆବାଉଟ୍ 93% ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପପୁଲେସନ୍? ଫରାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର 93%କୁ ନେଇକି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 93% ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା କ୍ଲେର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ କୃଷକ, କାରିଗର ଏବଂ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 93% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ବା ଶୋଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ କର୍ଭି ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ କର୍ଭିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ସଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଫୋର୍ସ ଲେବର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ଫୋର୍ସ ଲେବର। କର୍ଭି ହେଉଛି ଏକ ଫୋର୍ସ ଲେବର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପିଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନୋବଲ୍ସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମଜୁରୀରେ 2ରୁ 3 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ ୱେର୍ ଦ ଗିବେଲିୟସ୍? ଗିବେଲିୟସ୍ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗିବେଲିୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ସଲ୍ଟର କର ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରୟାଲ ସୋଲଜର, ରାଜକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ନୋବଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ବି, ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗିବେଲିୟସ୍। ଏମାନେ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ଲାସ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ବର୍ଜିୟସ୍? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ବର୍ଜିୟସ୍ ବୋଲିକି ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନୋବଲ୍ସ, କ୍ଲେର୍ଜି, ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ସର୍ଫ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ବର୍ଜିୟସ୍ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓକିଲ, ବ୍ୟାଙ୍କର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ଥିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା ଏମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ହୁ ହାଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଥେଇଥ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥେଇଥ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଥିଲା? ନୋବିଲିଟି, ପିଜେଣ୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନା କିଙ୍ଗ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ସି, ଚର୍ଚ୍ଚ। ଥେଇଥ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର 10 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ଜଏଡ୍
मैक्सिमम प्रिविलेज इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी रे क्यों स्टेट ता मैक्सिमम प्रिविलेज एंजॉय करुथिला? ऑप्शन गुड़िक हेउची थर्ड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, पीजेंट ओनली ना बर्जियस ओनली। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी फर्स्ट आउ सेकेंड स्टेट। क्लर्जी एवं नोबिलिटी ए दुईटी प्रिविलेज क्लास थिले जे माने टैक्स देउ नथिले एवं समाज रे विशेष अधिकार उपभोग करुथिले बा एंजॉय करुथिले। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिबा व्हाट वाज द फेमस सेइंग अबाउट फ्रेंच सोसाइटी? फ्रेंच सोसाइटी रे गोटिए फेमस कथा थिला सेटा कोटा? लिबर्टी इज पावर, ऑप्शन बी होची द किंग इज द नेशन, ऑप्शन सी होची द नोबल फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे, ऑप्शन डी होची इक्वालिटी बिफोर लॉ। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन सी द नोबल फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। यही स्टेटमेंटर अर्थ थिला जे संभ्रांत एवं पाद्री माने एक आरामदायक जीवन यापन करुथिले किंतु संपूर्ण टैक्स रो बोझ साधारण लोकंक उपरे थिला। परवर्ती क्वेश्चन हु वर द सर्फ इन फ्रेंच सोसाइटी? फ्रेंच सोसाइटी रे सर्फ क्यों माने थिले? ऑप्शन ए रे अछि रिच मर्चेंट्स, धनी मर्चेंट्स माने व्यवसायी माने, लैंडलेस लेबरर बॉर्न टू लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स द्वारा जे माने बंधा होकर रही लैंडलेस लेबरर से कहुला सर्फ ना चर्च ऑफिशियल्स मानक कहुला ना रॉयल ऑफिसर्स मानक कहुला। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी लैंडलेस लेबरर्स बॉर्न टू लैंडलॉर्ड्स। सर्फ पीजेंट मानक लोएस्ट ग्रुप थिला, एमानक पाखरे पर्सनल फ्रीडम नथिला एवं लैंडलॉर्ड्स पाई कंपलसरी काम करने को पड़ुथिला। परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन फ्रांस वाज ओन्ड बाय चर्च? फ्रांस रे केते प्रतिशत जमी चर्च रो मालिकाना रे थिला? ऑप्शन रे अछि 1/3, 1/4, 1/5 ना हाफ। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन सी 1/5। फरासी चर्च फ्रांस रो प्राय 1/5 जमीर मालिकाना थिला। यह एक बहुत धनी इंस्टीट्यूट थिला एवं प्रचुर राजस्व आनीथिला। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिबा हु वेर नोन एज द नोबिलिटी ऑफ द रोब? नोबिलिटी ऑफ द रोब भावरे क्यों माने जनाशुना थिले? ऑप्शन रे अछि ट्रेडिशनल नोबल्स, ऑप्शन बी रे अछि रिच मिडिल क्लास पीपुल हु परचेस्ड नोबल टाइटल, धनी मिडिल क्लास लोक माने जे माने कि नोबल टाइटल को किनी थिले, ऑप्शन सी रे अछि मिलिटरी ऑफिसर्स, ऑप्शन डी रे अछि चर्च ऑफिशियल्स। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी रिच मिडिल क्लास पीपुल जे माने कि नोबल टाइटलटा किनी थिले। नोबिलिटी ऑफ द रोब सही लोक माननकु दिया जायतिला जे माने ओरिजिनली मिडिल क्लास थिले, मिडिल क्लास रे जन्म होइथिले किंतु टंका देकी पैसा देकी नोबेल टाइटलटा किनिथिले। परवर्ती क्वेश्चन रे अछि व्हाट वर द शेयरक्रॉपर्स इन फ्रांस कॉल्ड? फ्रांस रे शेयरक्रॉपर्स माननकु कोन कुहा जाउथिला? सर्फ, मेटायर्स, रेंटायर्स ना कॉर्टेयर्स। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी मेटायर्स। से माननकु मेटायर्स कुहा जाउथिला। मेटायर्स माने भाग चाषी थिले बा शेयर क्रॉपर्स थिले जे माने जमीदार मानक जमी को चाष करुथिले एवं उत्पादित द्रव्यर एक प्रमुख अंश जमीदार मानक देउथिले। परवर्ती क्वेश्चन रे अछि व्हाट वाज द कंपलसरी चर्च टैक्स नोन एज? चर्च कंपलसरी चर्च टैक्स को कोन कुहा जाउथिला? कॉर्बी, टेल्स, थाइथ ना गिबेल्स। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन सी थाइथ। थाइथ हेउची चर्च टैक्स जहाँ कृषक मानक से उत्पादर 1/10 पार्ट चर्च को देवाक पड़ुथिला। परवर्ती क्वेश्चन रे अछि व्हिच क्लास लिव्ड लग्जरियस लाइफ्स इन पैलेसेस एंड मोनास्ट्रीज? पैलेसेस एवं मोनास्ट्रीज गुड़ी करे क्यों क्लासटा क्यों श्रेणीर लोक माने तुम लग्जरियस लाइफ रोथिले? ऑप्शन अछि लोअर क्लर्जी, हायर क्लर्जी, पीजेंट ना आर्टिसंस। सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी हायर क्लर्जी। बिशप एवं आर्क बिशप भली उच्च पदस्थ क्लर्जी माने विलासपूर्ण जीवन यापन करुथिले एवं प्रचुर आय उपभोग करुथिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लोअर क्लर्जी इन फ्रांस फ्रांस रे लोअर क्लर्जी मानकर कंडीशन की प्रकार थिला एक्सट्रीमली वेल्दी से माने एक्सट्रीमली धनी थिले इक्वल टू नोबल नोबल सहित से माने समान थिले कंपैरेटिवली पुअर एंड नेग्लेक्टेड ना कंपैरेटिवली पुअर थिले आ से माननको अवहेला करा जाउथिला ना टैक्स कलेक्टर ना से माने टैक्स कलेक्ट करूथिले सठिक उत्तर हेउचे हमर ऑप्शन सी कंपैरेटिवली पुअर एंड नेग्लेक्टेड लोअर क्लर्जी माने प्रकृत धार्मिक कार्य करती किंतु हायर क्लर्जी मानक तुलन में से माने गरीब एवं अवहेलित होइकी रहिथिले परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा व्हाट राइट वाज एन्जॉयड एक्सक्लूसिवली बाय द नोबल्स क्यों राइटटा एक्सक्लूसिवली नोबल माने एन्जॉय करूथिले ऑप्शन रे अछि राइट टू एजुकेशन राइट टू ट्रेड राइट टू हंटिंग राइट टू फार्मिंग सठिक उत्तर हे जो तुमरो ऑप्शन सी राइट टू हंटिंग नोबल्स मानकर स्वतंत्र शिकार अधिकार थिला से मानकर पशु माने कृषक मानकर फसल नष्ट करुथिले किंतु कृषक माने किछि करि पारि नथिले परवर्ती क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म एंशिएंट रिजिम रिफर टू एंशिएंट रिजिम कौन रिफर करुछि तार अर्थ कौन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओल्ड पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस फ्रांस रो पुराना पॉलिटिकल एवं सोशल सिस्टम ना इंडस्ट्रियल सिस्टम ना तुमरो मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन सठिक उत्तर हे तुम ऑप्शन बी ओल्ड पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस एंशिएंट रिजिम रो अर्थ तुमरो फ्रांस रो पुराना राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था थिला जो मोनार्की क्लर्जी एवं नोबिलिटी माने डोमिनेट करिकी रहुथिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच क्लास वाज ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड इन फ्रांस फ्रांस रे केउ श्रेणी को गिल्ड रे संगठित करा जायथिला ऑप्शन गुडी को नोबल्स क्लर्जी आर्टिसंस ना तुमरो सर्फ सठिक उत्तर हे जो तुमरो ऑप्शन सी आर्टिसंस आर्टिसंस माने शिल्प श्रमिक थिले एवं एक गिल्ड सिस्टम रे संगठित होइकी रहिथिले परवर्ती क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द थर्ड स्टेट रो मेन डिमांड कोन थिला मोर रॉयल लग्जरी राजकीय लग्जरी को से माने डिमांड करूथिले ना मोर प्रिविलेज फॉर नोबल्स ना नोबल मानक पई मोर प्रिविलेज को डिमांड करूथिले ना इक्वालिटी एंड एंड ऑफ प्रिविलेज डिमांड करथिले ना मोर वार अधिक वार को सठिक उत्तर हे जो तुमरो ऑप्शन सी इक्वालिटी एंड एंड ऑफ प्रिविलेज थर्ड स्टेट सामाजिक समानता टैक्स समानता और राजनैतिक अधिकार चाहुथिला यह विप्लव एक प्रमुख कारण बोली पालटी जाइथिला आज शेष क्वेश्चन 20 नंबर को देखिबा व्हिच ग्रुप इन फ्रेंच सोसाइटी वाज कॉल्ड द प्रिविलेज क्लास फ्रेंच सोसाइटी रे क्यों ग्रुप को प्रिविलेज्ड क्लास बोली की कहा जाए थर्ड स्टेट को कहा जाए ना पीजेंट एंड आर्टिसंस को कहा जाए ना क्लर्जी एंड नोबिलिटी कहा जाए ना बर्जियस ओनली सठिक उत्तर होछि तुमरो ऑप्शन सी क्लर्जी आ नोबिलिटी को कहा जाए फ्रेंच सोसाइटी रे फर्स्ट स्टेट जो माने कि क्लर्जी माने थिले एवं द्वितीय स्टेट रे नोबिलिटी माने रहुथिले एही दुईटी स्टेट को सुविधा प्राप्त श्रेणी बा प्रिविलेज क्लास भाବରେ विवेचना करा जाए बा कहा जाए से माने कर देउ नथिले राजनैतिक प्रभाव थिला से मानकर एवं स्वतंत्र अधिकार उपभोग करुथिले एक्सीलेंट वर्क स्टूडेंट एबे आमे फ्रेंच सोसाइटी एवं थर्ड स्टेट टॉपिक रो प्राय समस्त प्रमुख बा मेजर एमसीक्यू को कवर करि सारिछु एबे आपण एही विषय रु परीक्षा भित्तिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न गुडी को सहजरे समाधान करि पारिबे जदि आपको ये वीडियोटी हेल्पफुल लगे तेबे लाइक करो शेयर करो एवं सब्सक्राइब करिकी गोटे हाइप देदेवे नेक्स्ट वीडियो रे आमे कवर करिबा फ्रेंच रिवोल्यूशन रो आउ गोटे कारण रिलीजियस कंडीशन आज पई एतिकी देखा हबो आउ गोटे वीडियो रे दिस इज विमल योर हिस्ट्री मेंटर एंड हिस्ट्री एजुकेटर कीप वाचिंग कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग थैंक यू।